So we are going to start with our today's session for our second experiment, that is electrical safety. The topic name is electrical safety and it is related with causes of accident. Okay, why the accident happened, what is the reason and how we can prevent it. And then if we are knowing the reason by which the accident occurs, then definitely we are going to see how the accident is basically affecting the people. लोगों को किस तरह से एक्सीडेंट की वजह से नुकसान होता है और उसकी वजह क्या होती है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं. एंड सेकेंड पार्ट है यही एक्सपेरिमेंट का, टू स्टडी द प्रोसीजर एंड टू परफॉर्म द rescue method for a person receiving an electric shock. So electric shock is one of the very common, you can say, the effect of the accident. And उस समय पे किस तरह से आपको उन्हें बचाना है, किस तरह से आपको उनको क्या कह सकते हैं हम उसे, उनको रेस्क्यू करना है जो पर्सन इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको. ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी कंसेप्ट्स, बेसिकली सेफ्टी कंसेप्ट्स की अगर बात करेंगे तो देर आर मेनी चांसेस, मेनी human based or we can say the human made mistakes which may lead to the accident, and there are some results of unsafe act and unsafe condition that we are going to learn today. Okay, now in this case if we talk about the unsafe act, it means the person is performing the activities which are not related with the safety rules basically. Okay, and then what exactly this leads to, वो आज हम देखने वाले हैं. So first of all, you can see as in the slide, there is a person who is working at a height, and due to some reason, material failure, the person is about to fall. Okay, so let's see how this unsafe act and condition is leading an unsafe life. Okay, so if we talk about the various construction sites, there are people who are falling from the height. It is a result of an unsafe act and unsafe condition. Then also in the time of excavation, people are getting trapped, or the people are not following the safety precautions, so they are getting this unsafe condition में वो खुद को डाल देते हैं. Then also some major structure failures are leading to the एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम देख रहे हैं. देन ऑल्सो इन द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन विच इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन इफ अ पर्सन इज एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट. तो सबसे पहला जो नुकसान है और पहले सबसे पहला जो इफेक्ट होता है, दैट इज दैट पर्सन हु इज अ विक्टिम, दैट विक्टिम इज एक्सपीरियंसिंग अ पेन. दैट पेन इज रिलेटेड विद द हेल्थ कंडीशन. से फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने अभी देखा, सम स्ट्रक्चर हैज फॉलन and then that structure is fallen on some person, and that person is now, say for example, become handicapped. So that pain of that victim is very important to notice. Then second is a hospitalization cost, because after the accident people need to be restored, so they need to visit to the hospital, and the cost related with that. Definitely the medical loss of a person is, we can say we cannot revive that back, but still the cost is there. Cost to the family members in terms of visiting the patient and telling other people about how the accident happened. This is a mental pressure on the family, that कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ. So this kind of communication again, उनके जो मेमोरीज है एक्सीडेंट के, वो अगेन ताज़ा करते हैं. तो वो भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी आता है. ओके, सो एक्सीडेंट्स आर बेसिकली ऑलवेज प्रोवाइडिंग द negative results, or we can say the negative effect on the employees, on the people, on their family members. तो जितना हो सके आपको क्या करना है, एक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा अपने आप को दूर ही रखना है, और ताकि हम क्या कर सके, एक सेफ लाइफस्टाइल जी सके. जो भी हम अभी जिंदगी जी रहे हैं उसमें एक पार्ट है कि हम जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सैलरी मिल रही है, बट दैट इज अ वन पार्ट. सेकेंड पार्ट जो काफी इम्पोर्टेंट है, that is your life. Okay, and if you want to enjoy your life in a good way,
the safety is a one of the important parameter which you should be considering. Okay, अगर safety follow किया तो ये सारे जो losses है वो आपके नहीं होंगे. नेक्स्ट इज डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड मटेरियल. जो रॉ मटेरियल वहाँ पे है वो खराब हो गया, जो आपके इंडस्ट्री का जो प्रॉपर्टी होता है वो खराब हो गया. तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एक्सीडेंट की वजह से होती है. सिमिलरली इफ सम कंपनी इज dealing with the unsafe people, the people who don't believe on safety, people those who don't have have the importance for the safe environment, then they are leading to the accident, and that's why the company may lose their reputation in the market, and simultaneously there are uh, effect of that particular action on their business. Okay, moving to the next point, that is how we are going to prevent it. हमें इसे prevent करना है तो कैसे prevent करेंगे, what are the solutions we have. Okay, so first of all, if you want to prevent it, there are safety systems are available which you have to use. What are those safety systems, how we are going to use it, that we are going to do. Second is imply the fine or charges to the unsafe act by workers, employees and the management. कोई भी वहाँ पे अगर आपका अनसेफ एक्टिविटी करता है तो उसे आप कुछ फाइन लगाइए या कुछ चार्जेस लगाइए या फिर कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे एम्प्लॉय कीजिए, जिसकी वजह से जो अनसेफ कंडीशन करने वाले, अनसेफ एक्ट परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा एक डर रहेगा, जिसकी वजह से वो कंपनी में सेफ बिहेवियर करना शुरू करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ्टी टूल्स आर अगेन इम्पोर्टेंट. say for example personal protective equipments, the equipments which are related with the safety gear, safety tools. तो ये सारी चीजें हैं जो आपके कंपनी के सेफ्टी को इम्प्रूव करती है. एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन इज कमिंग इन दिस वर्ल्ड विद द प्रॉपर नॉलेज. तो हर एक पर्सन को उसका काम करने का सही तरीका और सेफ्टी, ये सारी चीजें अलग से पढ़ाना जरूरी है. तो द ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, engineers, management is required. So if you are providing proper safety awareness training, उनका mock drills वगैरह करवा के लेते हैं, तो definitely the people are going to follow that safety advice in the long run. Okay, so this is how we are going to see that this kind of attitude should be in your mind, that safety is first, the safety way or the safe way is the best way. Okay, so this is how we are going to start with the today's topic, and for that purpose we have different modules of safety trainings where the companies can go for this safety trainings and they will be getting a benefit out of it. Okay, so moving ahead with our next topic, that is electrical safety and how electrical safety is related with the different causes of basic electrical safety. So in this particular electrical safety training, you are going to learn about why exactly the electrical safety is important, how you are going to perform this safety in related with the electrical industry. Okay, so if you talk about electricity and electrical safety, what are the first point come in your mind? Just type in the chat box what exactly you think about electrical safety. किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, या फिर सेफ्टी से रिलेटेड अगर हम एक्सीडेंट की बात करेंगे तो कौन से एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होते हैं, ऐसा आपको लगता है. चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है. ओके, यू हैव 2 minutes टू टाइप द ओपिनियन. आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स आपको लगता है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है. गो अहेड. तो वन आंसर वी हैव इज ओवरलोड. यस, ओवरलोड कैन बी अ रीजन, बट व्हाट अबाउट द एक्सीडेंट? कौन से टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं? क्या फायर एक्सीडेंट हो सकता है, क्या आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फायर हैजार्ड हो सकता है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से, या वी हैव प्लगिंग वायर्स विदाउट प्रॉपर प्लग टॉप. यस, बहुत जगह पे ये पाया जाता है. शॉर्ट सर्किट, लूज कनेक्शन, नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस. यस, वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इज नॉट देयर.
water leakage hota hai. Perfect. What else apart from this? Yeah, we have working on live connections without proper, yeah, protective equipment. Flashover is happening. Unsafe installation. Yes, loose connection. So these all are, like, say for example, high tension components or high tension equipments are not properly earthed. Yeah, okay, right. So these all are the different types of accident which could happen. High voltage accident, yes, improper joints. So now moving to the next point, that is not using proper insulated tools. Yes, loose connections, static charge. Yeah, not discharging the static charge is also leading to the accident. Perfect. Maintenance of the, yeah, maintenance of the equipment, maintenance of the tools, right? Yeah, then we have ignoring the warning signs. Yes, very perfect. So these all are the different ways by which you can say that there are chances of accident in the electrical industry. Now apart from that, also people have very high confidence, you know. The people have very high confidence कि मैंने पिछले 20-25 साल में बहुत सारा काम किया है और वो काम करते वक्त मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए या फिर मुझे कुछ सेफ्टी फॉलो करना चाहिए, राइट? तो इस प्रकार के एटीट्यूड की वजह से भी बहुत बार एक्सीडेंट्स होता है. ओके, या the rules should also be followed. Hand gloves to be wear. अर्थिंग में लीकेज हो सकता है. यस, डैमेज प्लग्स है, नेकेड वायर्स है, राइट? तो दीज आर द डिफरेंट रीजंस यू कैन से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल accident. Perfect, perfect, great. So now moving ahead with this. So if we go to the next slide, that is transformer and the service connection. And if at the time of service connection in India, you can find that there are multiple connections put together, and there are chances of mismanagement of that particular connection, which lead to the shocks or arcing flashover, and which may lead to the sometime loss of the supply as well as the burning of the distribution transformer. Moving ahead with this, if you are using LOTO, like lockout tagout methods are there in which we are going to implement the some systems where safety is bypassed. Okay, no need to put your enrollment number in the chat box. Okay, so when we are doing this kind of activities along with the improper knowledge of not using lockout tagout methods, that time also we are experiencing, the people are going to experience the unsafe condition and unsafe act. Similarly, wearing the personal protective equipments and the insulated tools are reducing the chances of electrical accidents. अगर हमने इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को कम करना सोचा है, तो हमें सबसे पहला ज़रूरी है कि हम ये जो सारे इक्विपमेंट्स है, इंसुलेटेड टूल्स जो है, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. ओके, मूविंग अहेड विद दिस, इफ वी आर यूजिंग द proper cable, or say for example if you are using a proper equipment to do the measurement processes, then there are less chances of accident. But instead of using a voltmeter or instead of using a portable meters, if you are using a test lamp, and if that test lamp is not in a proper condition, then definitely it may lead to the accident. Similarly, when the damaged cords are there and we have a traffic or some material handling machineries in the premises, then these cords or these wires basically may lead to the short circuit and failure of a electrical appliances. Along with that, a serious electrical injury may happen. Okay, so moving ahead with this, then we talk about the overhead lines. Overhead lines के बारे में अगर बात करेंगे, the overhead lines are also associated with the poor maintenance, and that lead to the accident. Now if we talk about the trees and the fault related with the grounding, then we have to understand there are some ground lines which are creating, or we also sometimes say them it is a potential grid which is developed or which is built below the that particular place. तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना है, वो सारी चीज़ें हमें
ध्यान में रखना है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी कैन understand why these things happen basically. Okay, so because of the improper training, that how the wires or the overhead lines are getting connected with the tree and the person is accidentally touching the ladder. Now these all are the conductive materials, and conductive material passes the electricity which is maybe from the desired path or undesired path. Okay, but still the effect will be the same. आपकी इच्छा है कंडक्टर को टच करने की या नहीं, और अगर गलती से आपका टच हो भी गया तो भी आपको शॉक जो है या जो भी उसका इफेक्ट है वो आपको होगा ही होगा. उसमें आपकी इच्छा का कोई रोल नहीं है. ओके, ये समझ में आया आपको? आपको टच करना है, आपने टच कर दिया, या आपकी इच्छा भी नहीं थी और अपने टच हो गया तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगी. आगे है इसी प्रकार से दैट वी कैन हैव टू मेक श्योर दैट ओवरहेड लाइंस के साथ हमारे बूम लिफ्ट्स या कोई भी हाई एलिवेशन पे काम करने वाला जो हमारा मटेरियल का ये है, ट्रक है या जो भी है, उसके साथ हमें सावधानी बरतनी जरूरी है. देन ऑल्सो इन द हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आर in a we can say they are in a position in such a way that they lead to a contact to that high overhead lines, and overhead lines are leading to the accident. Okay, now maybe there is no necessity of a person who is associated with that decision making of using that equipment or not, but because of that presence of overhead line it is causing a accident. Then next, there are again different equipments by which you can say that there is a chance that there is an accident happen. Not only due to the mistake of one person, but there are 12 different, you can say 12 different reasons by which electrical accident happen. The very first, you can say that after that person is being associated with the accident, that become a victim. वो person जो है वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय तो है, but it is more of the victim or a patient basically. उसको अगर मेडिकल हेल्प तुरंत नहीं मिली, there are many people, many cases which may die because of the accident. Okay, so let's see what are the different causes of electrical accident. So मैं आपको एक एक कॉज बताता जाऊंगा, आपको वो कॉज आपके नोटबुक में लिखना है, और एक या दो स्टूडेंट्स जो है वो आपके चैट बॉक्स में भी लिखेंगे. ओके, द फर्स्ट इज अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क. से फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ अनसेफ सिस्टम, अगर सिस्टम ही आपका अनसेफ कंडीशन में है तो आपका क्या हो सकता है, आपका जो पर्सन है वो एक्सीडेंट में उसका डेथ हो सकता है. Now here you can see the current ratio, current value is given. Now this current value is basically playing an important role, because if the current is go beyond 30 milliampere, the adverse effect of that electric current on the human body starts accumulating. Okay, तो जो भी आपका करंट का वैल्यू है वो 30 मिली एम्पियर से कम होना जरूरी है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है. एंड देन वी आर मूविंग टू द 12 causes of electrical accident. The first one is unsafe system of work. Unsafe system of work. यहाँ पे हमें ये टॉपिक पे क्या करना है, अभी आपको लिख के लेना है. Unsafe. Second is unsafe system of work. Second is inadequate information. किस तरह से हमारा जो इक्विपमेंट है, से फॉर एग्जांपल जो इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन है वो अगर आपके पास नहीं है प्रॉपरली, तो आप वो इक्विपमेंट पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस है. थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नो ट्रेनिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन अ बिग एमएनसी और अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, they are actually receiving the training on the monthly basis or on the bi-monthly basis or a quarterly basis. But बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, उनको बेसिक काम किस तरह से करना है उतना बताने के बाद उनका ट्रेनिंग जो है वो खत्म हो जाता है, और उन्हें उनके सीनियर के साथ या उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ छोड़कर ये एक्टिविटी जो उनका जो प्रॉपर जॉब का जो भी
फंक्शन है वो किया जाता है, विच इज नॉट लीडिंग to the people who are working safely in the industry. Then inadequate isolation, if there is a hazardous chemicals or a area where there is a chances of accident, the isolation area should be required. There should be an inadequate space required which will allow people to separate from the victim, or they should be separate from the associated hazards, so that there are chances कि आपका जो भी पर्सन वहाँ पे विक्टिम के तौर पे है उसे अच्छे से मदद भी मिलेगा, and the people who are already safe, they are not getting affected. So then after that, this is the fourth point which you have to write down, that is the cause of electrical accident. Then fifth one we have is a unsafe rules. Okay, now what do you mean by unsafe rules? The rules which are leading to the unsafe condition and unsafe act. Say for example, a person is working, if the person is working at height, and the rule says that you need a person with you, so that that person will assist you to hold your ladder, or when you are working at the height, he will be a person for a communication. Then if the person is not following those rules, then he is leading to the unsafe condition. Similarly, poor control of work activities, where we don't know how much work is being done, उसका monitoring नहीं होता है, and instead of knowing that अभी कोई वहाँ पे काम कर रहा है, people may turn on that equipment, or people may turn on that power supply, by which the people may lead to the accident or shock. Okay, then after that, working live, yes, people are working live on the live components without using a proper safety gear, then this is leading to the accident. Okay, then we have unsuitable test equipments. So these are the all basically reasons which you have already shared in the chat box, and also we have discussed that if we are not using the proper test equipment, it may lead to the definitely the measurement values will be different, but apart from that, that lead to the unsafe condition, okay, and accident. Then poor maintenance is again very important point to know, that if the equipment is not maintained properly, then there are chances that this particular equipment may give you a failure status during the peak working condition. तो अगर आपने उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया है, तो वो इक्विपमेंट जो है वो खराब हो सकता है, और जब ये इक्विपमेंट खराब होगा तो डेफिनेटली आपको आपका सारा काम वो मशीन से रिलेटेड जो है वो रोकना पड़ेगा. बट बिफोर दैट पीपल मे बी अफेक्टेड. अगर वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो गया, या फायर हो गया, या टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो गया, तो ये कोई भी कंडीशन में वहाँ पर जो आजू बाजू में लोग हैं, वो लोगों का जान को खतरा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज दैट फेलियर टू मैनेज द वर्क. फॉर एग्जांपल, यू आर एसोसिएटेड as a worker or as an engineer with some company, and company has appointed you for performing some work, but you know that you are not in a capacity to perform that work, and you require an extra support or extra condition where you can get all the resources, so that you will be having the safe working condition. ये यहाँ तक समझ में आया सबको? आई होप. यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आपको अभी चैट बॉक्स में लिखना है आपको किस तरह से, ओके, आपको किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल कॉजेस या एक्सीडेंट के कॉजेस जो है, ये जो एक्सीडेंट के कॉजेस है वो आपको किस तरह से आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, कौन सा पॉइंट जो है वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वो चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स जो है वो रोक सकते हैं. ओके, जस्ट टाइप दिस इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. Okay, so most of the people saying that giving proper training to the employees, अगर ये condition missing है तो उसकी वजह से बहुत सारे accidents हो सकते हैं. Yes, apart from that we have unsafe conditions, improper material, and yes, last two causes जो है वो मैं अभी बताता हूँ. That over confidence of a human. So there are some human mistakes by which you can say that there are accidents, and there are some different technical reasons also by which electrical accidents may be
considered. Okay, now moving to the next point, electrical lines. If you are on the construction site or you are on the industrial premises, you have to beware of the electrical lines. Electrical lines are sometimes at a very high level, and that may lead to the accidents. Just see in this diagram, you can see that there are two people who are crossing or who are using their work at height protection, but the material they carry is the metal rods. Okay, and the metal rods are now being transported to the next location, and worker 1 was looking at worker 2 and how he is experiencing that कि अगर इसने ये घुमाया है ऑलरेडी जो रॉड है मेटल का, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को टच हो सकता है, वायर को टच हो सकता है, बट बिकॉज it was a distance away from that connection wires or that wires or electric lines, you call this condition as a near miss. Okay, what is this condition called as? It is called as a near miss, where the accident जो है वो होते होते बच गया. So everyone just type near miss in the chat box. Okay, so near miss is like भगवान ने थोड़ी देर के लिए बचा लिया, ऐसा काइंड ऑफ कंडीशन. बट ये हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है. Okay, so just everyone pay attention, just type near miss in the chat box. Okay, perfect. So due to this person is also getting concerned कि क्या हुआ एग्जैक्टली उसे भी समझ में नहीं आया, एंड देन दैट टाइम उसका ध्यान जो है वो दूसरी जगह पे गया, और उसे वहां से आने वाला जो दूसरा वर्कर था उसने उसे समझाया, उसने उसको बताया कि देख भाई ऐसा अगर होता था तो तेरे साथ फ्यूचर में ऐसा हो सकता था. इट वॉज अ नियर मिस जिसकी वजह से तू बच गया, ऐसा हर बार नहीं होगा. इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों को साथ में लेके ही वो मटेरियल को उठाना है, ताकि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है और इलेक्ट्रिकली आपका जो मटेरियल एसोसिएटेड है एक्सीडेंट जिसकी वजह से हो सकते हैं, वहां पे दोनों को मिल के आपको काम करना है. ओके, तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया है ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, राइट. सो आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट को लेके. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में से हमने ये फर्स्ट पॉइंट देखा है इलेक्ट्रिकल कॉजेस क्या है, एंड वी आर नाउ गोइंग टू रेस्क्यू अ पीपल, rescue a person. That person should be now considered to be safe, or we can say if the victim is there, then victim को किस तरह से हमें बचाना है या victim को किस तरह से हम बचा सकते हैं, ये हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं. ओके, so I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. just type yes in the chat box if it is clear to you. Perfect. Go ahead, just type yes in the chat box, or if you have any doubt or if you have any question in your mind, just go ahead, type it in the chat box. Okay, hello sir. Yeah, kindly type it in the chat box. Okay, so during the near miss other person need to take care, else it could be an accident. No, near miss is something with the all accidents. Okay, मतलब नॉट ओनली दिस कंडीशन विच वी हैव जस्ट सीन, बट कोई भी कंडीशन है. से फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, आपने हेलमेट नहीं पहना है बाय मिसफॉर्चून, और आप जैसे ही एक स्टेप आगे गए या फिर एक स्टेप आगे जाने वाले थे और आप रुक गए और थोड़ा सा पीछे आए और आपने आपका फोन निकाला, या फिर आपने किधर आपके दूसरे फेलो वर्कर के साथ बात करना चालू किया, और जैसे ही आप एक कदम पीछे हुए ऊपर से कोई मटेरियल नीचे आके गिर गया आपके सामने ही, और आप बोलेंगे अरे मैं अगर चलता था आगे जाता था तो ये इसके नीचे मैं आता था. तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे आप हिंदी में जिसको बोलते हैं बाल बाल बच गए बोलते हैं ना, वो टाइप का जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ नियर मिस कंडीशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, so this is not about this particular example which I have just shown to you. वो एक example था ताकि आपको उसका idea समझ में आए. But अगर आपको actual में वो point को समझना है तो it's like you are considering all the accidents जो हजारों में एक बार हो सकता था, but उसके पहले वो 100 बार
नियर मिस की तरह हो चुका होता है। कोई भी एक्सीडेंट जो है वो जब 1000 टाइम्स में एक बार होता है, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे जो हादसे है वो लाखों में एक बार होते हैं, तो वो लाखों में एक बार वो एक्सीडेंट होने के पहले 10,000 बार या 1000 बार वो नियर मिस के फॉर्म में हो चुके होते हैं। ओके, ये समझ में आ रहा है कि आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा गहरा है, काफी उसमें मीनिंग है, बट उसे आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जिस जिस वक्त आप नियर मिस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर ये नियर मिस अभी हो गया, ओके, उसको अगर हम बोलते हैं फॉर्चून बोलते हैं या फिर भगवान की दया बोलते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये नियर मिस अभी हो गया, हम बच गए, बट ऐसा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और इसी टाइप ऑफ वर्क को मैं थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज इन इंडिया यू कैन सी that people are really not giving a concern about the safety। उनको क्या है, काम होने से मतलब है, जुगाड़ करने का उनका माइंडसेट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे मे लीड टू द सीरियस ट्रबल। अगर आपको खुद को ट्रबल नहीं होता है तो आपके साथ किसी और 2-4 लोग को तो ट्रबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। सो मेक श्योर व्हेन यू आर लर्निंग दिस कोर्स, तो आप आपके जिंदगी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये पर्टिकुलर लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपके माइंड को ये डालना है कि जितना हो सके, जितना मैक्सिमम लेवल तक हो सके, मुझे मेरे लाइफ में, मुझे मेरे वर्किंग प्रोफेशन में सेफ्टी को फॉलो करना है, और एटलीस्ट 2 या 4 लोगों को मुझे सेफ्टी के बारे में अवेयर करना है। ओके, आपका जो एक अवेयरनेस का ये जो एक्ट रहेगा, या एक अवेयरनेस का जो आपका काम रहेगा, उसकी वजह से शायद उनके लाइफ में, उनकी लाइफ जो है वो बच सकती है, अगर उनको आपने बताया हुआ कुछ चीजें जो उनको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। ओके, सो नाउ टेक योर पेपर एंड पेन एंड रेडी विद दिस causes of accident। now this will be a very theoretical concepts, theoretical concepts में जा रहे हैं हम लोग, तो आपको इसको नोट डाउन करना है एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्रॉपरली। नाउ एक्सीडेंट क्या होता है, सबसे पहले वी आर going to focus on this point, what exactly the accident is। so it is a unplanned event। okay, so it is not a planned event। ये कोई प्लानिंग करके एक्सीडेंट नहीं होता है, it is an unplanned event। definitely it is not desired। ये कोई हम एक्सीडेंट हो मेरे जिंदगी में ऐसा कोई चाहता नहीं है, ये इट इज अन चॉइस, इसको कोई चॉइस नहीं करता है, इसको कोई प्लान नहीं करता है, और इसकी वजह से इंजुरी और फैटेलिटी, मतलब फैटेलिटी का मतलब है उसमें मौत हो सकती है। ओके, ये सारी चीजें हैं जिससे हम एक्सीडेंट को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट विच यू शुड कंसिडर इन योर रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट में आपको ये सारी पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें आपको पता चलेगा एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है और किस तरह से आप एक्सीडेंट को डिफाइन कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, series of events, and then that series of events which is leading to the unforeseen event, like if the event started, मतलब एक्सीडेंट कोई होना शुरू हो गया, तो वो एक्सीडेंट कभी कोई रोक नहीं सकता है उस समय पे, बट उसे रोकने के लिए प्रीवियस एक्सीडेंट का जो इवेंट्स है, जो क्यूमुलेटिव हम बोल सकते हैं उसे, क्यूमुलेटिव जो इसका इफेक्ट्स रहते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डज एक्सीडेंट ऑकर्स, एक्सीडेंट्स आर occur maybe with or without injuries when there is a series of that related events। okay, where you can consider कि अगर हम देखते हैं हमारे घर में, अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन इन योर हाउस इज कुकिंग, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, या आपकी बेटी है, ये कोई कुक कर रहा है या आप खुद कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, वो चपाती है या कोई ऐसा मटेरियल है जो जल गया, से फॉर एग्जांपल बर्न आउट हो गया, तो उसके पीछे अगर उसको हम एक्सीडेंट मानेंगे तो उसके जो बहुत सारे रीजंस है। ओके, जैसे कि आपने गैस को बहुत बड़ा रखा होगा, या फिर आपका ध्यान जो है वो किसी दूसरी जगह पे गया होगा, या फिर मे बी दैट मटेरियल जो उसको, वो चपाती को आपको थोड़ा मोटा रखना था तो बहुत पतला हो गया है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बाय व्हिच एक्सीडेंट में हैपन। तो ऐसा कोई
हम बोल नहीं सकते कि एक्सीडेंट का ये एक ही रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है. ओके, सो इट इज रिलेटेड विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स. नेक्स्ट वी कैन से अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन. ये दोनों चीजें समझना जरूरी है. इट इज अ एक्ट बाय द इंजर्ड पर्सन और अनदर पर्सन जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है. अनसेफ कंडीशन का मतलब है हजार्डस सिचुएशन, जहां पर ये एक्सीडेंट ये एम्प्लॉय के साथ तो हुआ है, बट इसके अलावा दूसरे एम्प्लॉयज के साथ भी ये टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है. दिस इज दिस फिलोसॉफी. अभी देखते हैं कि इंसिडेंस ऑकरेंस किस तरह से होता है. यहाँ पे एक आदमी आपको आप देख रहे हैं कि वो सीढ़ी से गिर रहा है. सीढ़ी से गिर रहा है या सीढ़ी से गिर गया है. यहाँ पे दूसरे जगह पे भी वो उसको शॉक लगा है या वो गिर गया है. तो कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, कांटेक्ट विथ नॉइज की वजह से होता है, कांटेक्ट विथ रेडिएशन, इक्विपमेंट, वाइब्रेशन, हीट एंड कोल्ड, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सारी चीजों के साथ अगर आपका कांटेक्ट हो गया तो आप वहां पे एक एक्सीडेंट को क्या बोल सकते हैं, एक न्योता दे रहे हैं, या वो एक्सीडेंट को आप क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं. सिमिलरली इसके और टाइप्स है कि आप इधर किसी मटेरियल के साथ स्टक हो गए, आप इधर से गिर गए, स्लिप हो गया, ट्रिप हो गया, कॉटन हो गया. मतलब कॉटन सेम लेवल, मतलब जहां से आपको बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है वहां पे आप फंस गए. आफ्टर दैट ओवर एक्सर्शन, आपने बहुत ज्यादा शिफ्ट ड्यूटी में काम कर लिया या आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया ओवर टाइम के लालच की वजह से, और आप उसके बाद दूसरे दिन और काम नहीं कर पा रहे हैं, या आपके कोई मसल्स डैमेज हो गए, तो ये सारी चीजें जो है वो ओवर एक्सर्शन में इंक्लूड होती है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द इमीडिएट कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट इज लाइक डिफरेंट प्रैक्टिसेस. अगर आपने हैजार्डस लोकेशन में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना काम कर रहे हैं, तो ये टाइप का जो प्रैक्टिसेस है वो आपको एक्सीडेंट की तरफ लेके जाएगा. तो सबसे पहला रीजन है ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी. आपको वो काम करने का अथॉरिटी है या नहीं है. अथॉरिटी का मतलब है यू आर इन चार्ज, यू आर नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर नोइंग द रेमेडीज टू बी परफॉर्म. ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. इफ यू आर यूजिंग इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, अगर आपको कोई टूल्स का इस्तेमाल करना है और आपको टूल्स के बारे में पता नहीं है, तो आप वहाँ पे एक्सीडेंट को न्योता दे रहे हैं. नॉट यूजिंग द PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट. Then we have correct lifting procedures, or we can say that in every industry, okay, in every industry there is a SOP. What is the word? SOP. Okay, and that SOP is, give me a moment, and that SOP is basically preventing people from mismanaging with the company infrastructure or company का जो भी टूल्स वगैरह है उसके साथ मतलब रॉन्ग बिहेव वो नहीं कर सकते हैं. सो दैट SOP इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. और उसी प्रोसीजर को SOP इज मतलब सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ओके, तो इसके साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज को, आपके वर्कर्स को किस तरह से बेनिफिट उसका होता है. ओके, नेक्स्ट इज दैट ड्रिंकिंग और ड्रग यूज during the work, which is not at all recommended, because whenever you are working at the hazardous location or जहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस है, और वहाँ पे अगर आप इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में अगर जाते हो तो डेफिनेटली आपका खुद के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, और वहाँ पे आपके इक्विपमेंट के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं रहेगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने के लिए. ओके, समटाइम्स the equipments and machineries are also not in a place by which they will be providing you the safe working condition. तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. I hope I am audible to you all, so that you can type Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. just type yes in the chat box if I am audible to you all. Perfect. क्या बीच बीच में ऐसा करना जरूरी होता है ताकि समझ में आ सके कौन कौन है जो सुन रहे हैं और कौन कौन है जो एक्टिवली लर्न कर रहे हैं. तो इसे बोलते हैं फीडबैक. हमने किसी को बताया कि जा मेरे लिए वो स्विच बंद कर दे, मैं यहाँ पे अभी काम करने वाला हूँ ये इक्विपमेंट पे, और उसने वो सुना ही नहीं, तो आप इस मिसकंसेप्ट में रहेंगे कि
उसने तो बंद किया होगा, तो इसके लिए फीडबैक लेना जरूरी है। तो अभी मैं भी फीडबैक ले रहा हूँ कि आप सब लोग लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सुन रहे हैं, अच्छी बात है। उसे सुनो, समझो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आपके आजू बाजू के दो चार वर्कर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर जो भी है, उनको इसका इम्पोर्टेंस समझाओ, ताकि वो भी आपके लिए एक उनके माइंड में सोच आएगा कि अरे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मे बी मुझे क्या बोल सकते हैं, सेफ कंडीशन के बारे में पता चला, या फिर अगर उसकी वजह से किसी की जान बचती है तो डेफिनेटली उसकी जो दुआ है वो आपको ही लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ये देखना है कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ये है अनसेफ कंडीशंस में कि हमारे पास इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव गार्ड्स है। अगर कोई मशीनरी में शार्प ऑब्जेक्ट है, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, राइट? यस। सो वो मशीनरीज की जो गार्ड्स है वो अगर इनइफेक्टिव है, गार्ड्स की वजह से वहाँ पर आपको यू कैन से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है बेसिकली, तो दोज गार्ड्स विल बी कंसिडर्ड एज अ ineffective guards. Now unserviceable tools, there are some unserviceable tools which are related with the equipments, and those equipments are not giving you proper you know जो जो जिस इफेक्टिवनेस से आपको वो टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि ये कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको एक्सीडेंट को संभालना पड़ेगा या एक्सीडेंट उसके साथ होगा। देन वी हैव बैड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। बहुत गंदगी अगर है वहां पर, तो वो गंदगी की वजह से भी क्या हो सकता है, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द एक्सीडेंट्स। ओके, पुअर वर्क स्पेस इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है लाइटिंग। अगर लाइटिंग प्रॉपर है तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, सारी चीजें दिखेंगी तो आप उससे अवेयर हो जाएंगे। अगर अवेयर हो गए तो आप वहां पे थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, प्रिकॉशन लेने की वजह से आपका एक्सीडेंट का जो है चांसेस वो कम हो जाएगा। बट अगर इल्यूमिनेशन नहीं है प्रॉपरली, पुअर इल्यूमिनेशन है, तो इट लीड्स टू द एक्सीडेंट। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड लास्ट वन इज अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या कह सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ मस्करी मजाक मस्करी करते हैं, तो उस समय पे भी चांसेस है कि आप एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुअर हाउस कीपिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग in terms of the accident. Then we have basic causes like personal factors. ये बहुत जरूरी है, ये आपको आपके नोटबुक में अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको पर्सनल फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और वो क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। फर्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज और स्किल। आप एज अ फ्रेशर जॉब कर रहे हैं या फिर वो जॉब पहली बार कर रहे हैं, तो उस समय पे ये लैक ऑफ नॉलेज वाला फंडा जो है वो काम में आता है या उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इम्प्रॉपर मोटिवेशन, आपको अच्छे से मोटिवेशन नहीं मिला है ताकि हम सेफ्टी को फॉलो करें। ओके, देन फिजिकल और मेंटल कंडीशन, घर में कोई झगड़ा करके आया है कंपनी में, या फिर ट्रैवलिंग के वक्त किसी के साथ झगड़ा हुआ है और फिर वो झगड़े के मूड में है, या किधर शेयर मार्केट में कुछ पैसा वगैरह लगाया है और लॉस हो गया है, आते आते देखा, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, मेंटल कंडीशन को बैलेंस जो है आपका वो बिगाड़ सकती है। ओके, देन लिटरेसी और एबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत बार वर्कर्स का मैंने कंडीशन देखा है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या उनको उनके हालात के बावजूद पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्हें कुछ कॉमन सेंस की बातें समझ में नहीं आती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, मे बी वो काम करने के लिए बहुत 100 टन का काम भी करेंगे, 10 टन का काम भी करेंगे, बट माइंड लेवल पे वो उनका लिटरेसी या एबिलिटी ना होने की वजह से उनको बहुत सारा रीजंस है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड बी थैंकफुल टू द गॉड, ऑल यू शुड बी थैंकफुल कि आपको वापस जॉब करते करते पढ़ने का मौका मिला है केजे सोमैया इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो यू मस्ट से थैंक यू टू द गॉड और थैंक यू टू द यूनिवर्स कि मुझे ये मौका मिला है सीखने के लिए। ओके,
देन व्हाट आर द डिफरेंट जॉब फैक्टर्स, फिजिकल इन्वायरमेंट है आपकी कंपनी में, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपकी कंपनी ने आपको जो टूल्स वगैरह दिया है वो सब स्टैंडर्ड टूल दिया है, मतलब उसका कोई अच्छा क्वालिटी नहीं है और वो आपसे अच्छा काम करने की उम्मीद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलेगी। देन एबनॉर्मल यूसेज हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, ओके, पीपल आर नॉट डूइंग द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। देन वी हैव, या ये अभी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया दैट हैविंग अ बैड डे एट अ होम और अ hazardous condition, or if you are talking with a person and you are distracting from some अदर प्लेसेस, तो इस तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस। यस, किसी ने बीच में बताया था अभी कि सुपरवाइजर का ध्यान होना चाहिए, सुपरवाइजर ने ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अच्छे से कौन कैसे काम कर रहा है उसको सुपरवाइज करना जरूरी है। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनएडेक्वेट इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं, समझते हैं कि ये तो बरसों से काम कर रहे हैं, इनको क्या सेफ्टी टॉक देना है, इनको क्या टूल बॉक्स टॉक्स देना है, क्यों जरूरी है, और अगर दे रहे हैं तो वो भी डेली डेली सेम हो रहा है, तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फेल्यूर ऑफ एसओपीज, कुछ प्रोसीजर दिया है करने के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं, वर्कर जो है वो सुपीरियर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, अक्षय बता रहा है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो सकते हैं। मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है वो भी कुछ हद तक डिपेंड करती है, बिकॉज वी नीड टू see whether the standards which are used, these are measurable standards, they are associated with the that particular company's procedure, and उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है या हमारे जो प्रोसीजर्स है वो हमारे वर्क को इवेल्युएट करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर वो है तो डेफिनेटली पीपल विल ट्राई टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स, और उनको अगर कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड आप इंक्रीमेंट या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वो रिवॉर्ड की वजह से तो वो सेफ्टी को फॉलो करेंगे। सिमिलरली वेरी इम्पोर्टेंट जो है टास्क, ये उसको इंस्ट्रक्शन के साथ शुरू किया जाए। कोई भी टास्क को कंप्लीट करना है या शुरू करना है तो उसे इंस्ट्रक्शंस के साथ कीजिए, अगर इनकम्प्लीट है तो उसको भी इंस्ट्रक्शन के साथ कीजिए, ताकि सामने वाला जो बंदा है, जो आप जॉब से जा रहे हो घर पे या कोई शिफ्ट ड्यूटी पे दूसरा कोई बंदा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इग्नोरिंग द सेफ्टी प्रोसीजर इज वन ऑफ द मेजर यू कैन से रीजन फॉर एक्सीडेंट, ये रीजन है बहुत ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Give me a moment. Yeah, again a very important cause of accident that people want to take shortcut. Okay, while doing the shortcut, what you are doing, you are ignoring the safety, you are reducing the safety, and safety reduce करेंगे तो definitely accident होने वाला है। Yeah, this is what I was talking about. एक अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है आपके साथ या आपकी कंपनी में, so there are series of unsafe act and unsafe conditions because of which this accident may take place. So 6000 unsafe act and unsafe condition के बाद कुछ accidents होते हैं जिसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है 600, उसके बाद प्रॉपर्टी डैमेज 30 एक्सीडेंट में दिखाई देता है, 10 माइनर इंजरीज दिखाई देते हैं, और एक जो एक्सीडेंट है जिसमें सीरियस या डिसेबिलिटी जो है वो यहाँ पे ऐड होता है। तो ये सारी चीजें हैं, या सेफ्टी पिरामिड। यस, वेरी परफेक्ट। तो इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं सेफ्टी पिरामिड के, बट हम इसको एक एक्सीडेंट के रेशो के हिसाब से देख रहे हैं। इसी को ही आगे जाके हम कंसिडर करेंगे कि किस तरह से ये सेफ्टी रेशो को हम मिनिमाइज करेंगे। ये 6000 का जो नंबर है उसको किस तरह से कम करेंगे, इसको अगर कम करेंगे तो ये डेफिनेटली ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, और फाइनली जो सीरियस एक्सीडेंट है वो कम हो गए। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट लर्न करने के बाद आपको ये पता चला है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस of accident and how we are going to make sure that people will follow the safety precaution. Okay, so experiment number 2 यहाँ पे
खत्म होता है, एंड देन वी विल बी राइटिंग अवर रिपोर्ट अबाउट इट, इन विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज द एक्सीडेंट, what are the causes of accident, how to prevent the accident, and if we are preventing the accident, what is that accident ratio study says. तो ये पिरामिड भी आपको उसमें ऐड करना है. So I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. And if you have any other doubt, you can just go through the Google Classroom or WhatsApp group where you can ask me a question directly.